So, once again, a very warm welcome, guys. We have started class 11 CBSE ISC accounts, and we have covered 3 classes of it. Today is class number 4 of basic concepts and of chapter 1. And what we are going to do today is we are going to finish off with chapter 1, which we have already done, and we are going to start with chapter 2. ठीक है? तो आज का क्लास में अपने चैप्टर 1 खत्म कर लिए थे लास्ट क्लास को, जो कि मंडे को था, एंड आज का क्लास में मैं चैप्टर 2 शुरू करने वाला हूं. चैप्टर 2 शुरू होके चैप्टर 2 का बीच तक चले जाएंगे. एंड मैं बता दे रहा हूं पहले ही, चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 3 से आप लोग का प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उसका मजा आएगा. तो जो लोग कहीं पे भी अगर अकाउंट्स देखे हो स्कूल या कहीं और somewhere else, then you must have seen that usually they have a bad habit of starting from the middle of the chapter without any inception or introduction, and sometimes they start with numbers without any theoretical explanation at all, which confuses the student, and the student is totally perplexed. Okay, so we are starting without any further ado with today's session. Today's session is chapter 2 because chapter 1 has been done with you. So let us start with chapter 2, which is theory base of accounting. सर अभी चैप्टर 1 में भी तो थ्योरी बेसिक किए, हाँ वो इंट्रोडक्शन था, अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन से बढ़ के थोड़ा और थ्योरी का बेस स्ट्रॉन्ग करना है. तो क्या क्या कंटेंट्स है इस चैप्टर में वो सारा करेंगे, बट वो करने से पहले मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ अपना प्लानिंग जो अपने करके रखे थे. नेक्स्ट क्लास क्या होगा उसका हमेशा कर लेते हैं. तो नेक्स्ट क्लास क्या होगा का प्लानिंग मैं किया था. ये देखो, नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे मैं पहले रिवीजन कराऊंगा चैप्टर 1 का टॉपिक्स जो हो चुका था, फिर होमवर्क डिस्कशन करूंगा जो पढ़ने दिया था. और याद करो चैप्टर 2 कंटिन्यूड लिखा था बट स्टार्ट नहीं हुआ था, तो चैप्टर 2 लिख रहा हूँ स्टार्ट. एंड एक चीज होगा चैप्टर 1 में, अगर तुम लोग को याद है तो चैप्टर 1 में कुछ चीजें बाकी था. आई रिमेम्बर एंड दैट्स व्हाई देखो प्रूफ मैं चैप्टर 1 भी खुला रख दिया. ठीक है, सो आज का प्लानिंग मैं कर दिया. रिवीजन करके, रिवीजन के साथ साथ होमवर्क डिस्कशन हो जाएगा. होमवर्क में ज्यादा कुछ था नहीं, एंड चैप्टर 1 जो मैं खुद से पढ़ने दिया था होमवर्क में, वही चीज मैं समझा के चैप्टर 1 और होमवर्क डिस्कशन एक साथ करके आगे बढ़ेंगे. क्लियर है? तो मैं शुरू कर रहा हूँ today's session with a quick revision of what we had seen in the last class. Okay, I need not go to the chapter, rather I can show it from here because I had explained everything on the board. Okay, if you recall that we have done the qualitative characteristics of accounting. याद है? Reliability, relevance, understandability and comparability, RRUC. And then we have done some basic terms. Some basic terms may I have explained you entity. I had explained you assets. Assets are what? Resources, O&C, owned and controlled by an enterprise, which gives you FEB, future economic benefits. Okay, and also if you recall, we have done classification of assets. Assets दो तरह का हो सकता है, नॉन करेंट एंड करेंट. एंड नॉन करेंट यानी कि फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट्स, और करेंट यानी कि शॉर्ट टर्म एसेट्स यूजुअली which will materialize and give you benefits within a period of next 12 months. Okay, and then we have done liabilities also. Liabilities can be segregated into non current and current as well. And इसके बाद मैं और कुछ नहीं कराया था. So that concludes our revision. Now we will finish off quickly the homework discussion. Homework discussion was the remaining part of chapter 1 only. So we will finish all these three together. Homework discussion and chapter 1 का remaining portion मैं अभी कराऊंगा. ठीक है? And उसके बाद we will start with chapter 2. And 6:55 round, 6:55, I will take your doubts and then we will close off today's class. Okay? Just a moment.
Okay, guys, let us please understand today's session. Today's session I am beginning with चैप्टर 1 का रिमेनिंग पोर्शन जो होमवर्क में दिया था वो डिस्कस करके और रिमेनिंग पोर्शन खत्म करेंगे. सम बेसिक टर्म्स में कुछ टर्म्स मैं खुद से पढ़ के आने बोला था. Of course, some of you could and some of you couldn't. I'm not going into it. I'm not digging into today due to lack of time. Who has done, who hasn't done, but I will. So please do your homework regularly. If not today, I will hold you from next day and ask you that whether or not you have done your homework. Today I'm in a hurry, a little bit of hurry, so I'm not asking you. Okay? All right. All right. If you recall, we have done all these. We have done all these last class. ये भी रिवीजन हो रहा है. ठीक है सर, बताइए अभी क्या क्या सम बेसिक टर्म्स में आपका एसेट्स हो गया था. हाँ सर. लाइबिलिटी भी हो गया था. हाँ सर. सर अभी बाकी क्या था, बाकी जितना भी था मैं बोला था खुद से पढ़ने के लिए. ठीक है. अब ये जो कैपिटल है यहाँ से आज का क्लास शुरू होगा. ठीक है. वी विल स्टार्ट टुडेस क्लास फ्रॉम कैपिटल. ओके. What is capital? Any idea? Any idea? Any of you? Although you may have idea, I will not ask you. I will explain myself. सर बताइए. बिल्कुल बताऊंगा. ध्यान से सुनना. लेट्स से एक बिजनेस मैं स्टार्ट कर रहा हूं. सर आप. हाँ. मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और मेरा पॉकेट से यानी कि जेब से यानी कि मेरा पर्सनल रिसोर्सेज से, पर्सनल फंड से, पर्सनल फाइनेंस से आई एम स्टार्टिंग द बिजनेस विथ ₹5 लाख. ठीक है. 5 लाख रुपीज मैं दिया बिजनेस को. सर बिजनेस को दिया मतलब बिजनेस को स्टार्ट किया 5 लाख रुपया देके. ठीक है. मैं कैपिटल वगैरह नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं 5 लाख. ठीक है. नाउ एक सेकेंड. ठीक है. 5 लाख देके स्टार्टेड बिजनेस. बिजनेस करने के लिए मेरे को सिर्फ 5 लाख रुपया से नहीं होगा. मैं उधार लिया बैंक से 10 लाख. ठीक है. क्लियर है. 10 लाख उधार लिया एंड 5 लाख देके बिजनेस चालू किया. ओके सर, समझ में आया. आगे बताइए. आगे क्या हुआ. आगे तो मेरा बिजनेस में अभी कितने का एसेट है या कितने का पैसा है, कैश है? 15 लाख. माई बिजनेस हैज हाउ मच टोटल? 15 लाख. सो दिस टोटल इज माई टोटल कैश इन बिजनेस. है ना. अच्छा, बिजनेस का पर्सपेक्टिव से सोचो. एसेट एंड लाइबिलिटीज तुम लोग समझ गए थे लास्ट क्लास. बिजनेस का पर्सपेक्टिव से बिजनेस में आया कैश. ये कैश बिजनेस का क्या है? एसेट है ना. हाँ है ना. कैश फ्यूचर में स्पेंड हो पाएगा तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा. एंड दे आर करेंट और नॉन करेंट. करेंट कैश तो 12 महीने में खर्चा होगा. ठीक है ना. तो कैश या लिक्विड मनी is always a current asset from the perspective of the business. You can write it down also. Cash is always a current asset from the perspective of business. तो 15 लाख का जो रकम आया ये मेरा करंट एसेट है. हाँ सर, ये आपका करंट एसेट है. क्लियर. ओके. तो सर ये 15 लाख में
ये जो लोन, बैंक लोन आप लिए, ये जो बैंक लोन आप लिए, ये बैंक लोन क्या है? दिस बैंक लोन इज माई लाइबिलिटी। ये अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तो इसको नॉन करंट लाइबिलिटी बोलेंगे, नहीं तो इसको शॉर्ट टर्म है तो करंट लाइबिलिटी बोलेंगे। वो तो पता ही है आप लोग को। हाँ बिल्कुल पता है सर। तो दिस इज माई लाइबिलिटी एंड दिस इज माई एसेट। सर 10 लाख का लाइबिलिटी है और 15 लाख का एसेट है। हाँ, अभी मैं जो बिजनेस स्टार्ट किया विथ माई ओन पॉकेट मनी, मैं जो बिजनेस स्टार्ट किया विथ माई ओन पॉकेट मनी ऑफ 5 lakhs, what is that? So business has a cash of 15 lakhs and business has liability of loan of how much? Liability of 10 lakh. This liability is belonging to external third party. थर्ड पार्टी यानी कि बाहर वाला, यानी कि बैंक तो बिजनेस का अंदर वाला नहीं है, बैंक बाहर का आदमी है। तो बाहर वाले से मैं उधार लेके आया 10 लाख, तो ये इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल लाइबिलिटी या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो देखो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और ये कैश क्या है? करंट एसेट। करंट एसेट, बिजनेस का रिसोर्सेस पूरा 15 लाख हो गया। और ये 5 लाख कौन दिया? ये 5 लाख दिया मालिक खुद ने। मालिक खुद ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपया देके, तो ये 5 लाख हो गया कैपिटल। यानी कि टोटल एसेट्स, ये टोटल एसेट्स है। हाँ, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, माइनस टोटल लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटी, सॉरी, total asset minus total liability is known as capital. So can I say capital is equal to, capital is equal to total assets minus external liabilities. मैं वापस बोलूंगा, एकदम आहिस्ते से धीरे से पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी। माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, and can I say it is nothing but an internal liability? Capital is internal liability of the business towards the proprietor. ओके सर, ओके सर, ये सब नोट लेते रहो। ठीक है सर। ओके, नाउ वंस अगेन सम बेसिक टर्म्स में अपने शुरू किए कैपिटल से। जो जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स को रेड में रख रहा हूं। कैपिटल से शुरू किया, मैं एक एग्जांपल न्यूमेरिकल लिया, जाके समझने में मदद हो, समझ पाओ। मैंने बोला कि कैपिटल जो है क्या है? मैं बोला एक आदमी, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन अपना बिजनेस शुरू किया खुद का 5 लाख रुपया देके, और ये 5 लाख रुपया वो रकम कैश में लेके आया बिजनेस में, तो बिजनेस में कैश आ गया। अब बिजनेस करने के लिए और भी पैसा लगेगा, तो और पैसा कहां से लाया वो? और पैसा लाने के लिए ही वेंट टू द बैंक एंड टुक अ लोन, उधार लिया बैंक से। और ये लोन 10 लाख का लिया, तो टोटल कुल मिला के उसका बिजनेस में फंड्स आ गया या कैश आ गया 15 लाख। हाँ सर बिल्कुल। और ये 15 लाख बिजनेस में भी कैश है, उसमें से बाहर का लाइबिलिटी, बाहर मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू पे बैक। सो बाहर का लाइबिलिटी आया हाउ मच? 10 लाख। और इंटरनल लाइबिलिटी आया 5 लाख। ये जो इंटरनल लाइबिलिटी मतलब, इंटरनल लाइबिलिटी मतलब बिजनेस मालिक से इंटरनली लिया 5 और बाहर वाले से लोन से लिया 10। इंटरनल एक्सटर्नल। कैपिटल सिग्निफाइज द इंटरनल लाइबिलिटी। बिजनेस में टोटल जो एसेट्स है वो क्या बाहर से आ सकता है, या बिजनेस को कहीं ना कहीं सोर्स से ही मिलेगा? बिजनेस क्या खुद का कोई सोर्स है? नहीं। बिजनेस में जो भी पैसा लगाया जाएगा या जो भी पैसा बिजनेस को मिलेगा, वो कहां से मिलेगा? इधर मालिक से मिलेगा या बाहर वाले से मिलेगा, दोनों में से एक। मालिक जो लेके आएगा वो कैपिटल है, और बाहर वाला जो लेके आएगा वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। यानी कि हम लोग आगे जाके अभी मैं सिखा नहीं रहा हूं, आगे जाके एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन सीखेंगे। आगे जाके सीखेंगे सर, अभी क्यों बोल रहा हूं? अभी बोल दे रहा हूं क्योंकि इसके साथ संपर्क है, रिलेशन है समझने का। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं अपने। जैसे साइंस में तुम लोग पढ़ते थे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर,
आइंस्टाइन सर, ये जो है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन भी अकाउंट्स का एक बेसिक इक्वेशन है, जहां पे बोला जाता है ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। इसका मतलब है बिजनेस में जितना भी एसेट्स है वो सारा एसेट्स, 15 लाख का अगर है तो ये 15 लाख का एसेट्स के खिलाफ क्या है, लाइबिलिटी, एंड कैपिटल भी 15 लाख की है। तो A is always, total assets is always equal to total of liabilities and capital. And that's why C is equal to A minus L. सर मैथ्स, हाँ मैथ्स। तो C यानी कि कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी, सॉरी एसेट माइनस लाइबिलिटी। वही तो किया, एसेट है 15 और एक्सटर्नल लाइबिलिटी है 10, तो 5 लाख मिल गया वैसे भी। क्लियर हुआ? तो दिस इज द फंडा ऑफ कैपिटल, दिस इज द फंडा ऑफ कैपिटल। कैपिटल को मैं एक नोट भी लिखाऊंगा, नोट लिखाने के लिए। अच्छा, कैपिटल जब बोल रहा हूं तब ड्राइंग्स के बारे में मत पूछो, ठीक है? डोंट आस्क आगे का चीज या पीछे का चीज। मैं तो अभी कैपिटल में फोकस कर रहा हूँ, आराम से कैपिटल पढ़ा रहा हूँ, समय देके, तो वो समझो। क्लियर है? ड्राइंग्स आगे जाके समझाऊंगा गौरव। ओके, नाउ लिखो, ये पहले कॉपी कर लो सब लोग। ये कॉपी करके मेरे को हाथ उठाओ, हाथ उठाने से मेरे को समझ में आएगा कि कॉपी हो गया। कॉपी जैसे ही हो जाएगा, I will dictate a note on capital and we will go forward and see the other terms. And don't worry, capital आगे जाके भी और भी समझाया जाएगा बहुत कुछ। Don't worry, keep on studying, don't worry. Very good, people are copying very fast. कॉपी में माहिर है हम लोग। A is equal to L plus C समझ नहीं आया? डोंट वरी, बिकॉज बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन अगर समझ में नहीं भी आया, बाद में जाके पढ़ाया जाएगा। मैं बोला ना ये बात का टॉपिक है, मैं ऐसे अभी बोल दिया, इमोशन पे आके बोल दिया, ठीक है? डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन टू यू अभिजीत, डोंट वरी। आगे जाके ये टॉपिक जब समझाया जाएगा तब ऐसे ही रहेगा चैप्टर 2-3। सो डोंट, नो नीड टू वरी, नो, नॉट एन इशू। क्लियर है बॉयज? इज इट क्लियर? कैन आई गो अहेड? कैन आई गो अहेड? ओके, आई एम गोइंग अहेड, I am going ahead. All right, sir. लिखो, capital. Capital is the amount. Capital is the amount of investment made by the proprietor. Capital is the amount of investment made by a proprietor in a business. In a business. In a business. Capital is the amount of investment made by a proprietor in his business. Okay? उसके बाद लिखिए, continue from there and write that capital is also known as the surplus of assets over liabilities. The surplus of assets over liabilities. अच्छा, मेरे को बताओ, मैं जो अभी लैंग्वेज बताया, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज द सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, यही है ना? ये जो लिखा, ये कौन सा सर? ये यही है ना? मैं जो वर्ड्स में लिखा यही है ना?
बात समझ में आ रहा है? कैपिटल इज द सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, यानी कि यही वाला इक्वेशन है ना, मैथ्स है बेटा, ठीक है। C इज इक्वल टू A माइनस L। कैपिटल क्या है? एसेट्स। बिजनेस में एसेट्स है 15 लाख और बाहर से लेके आया 10 लाख, तो अंदर से कितना आया? 5 लाख। ये अगर ना भी लिखा रहता तो मैं वही समझ लेता ना। क्यों? क्योंकि कैपिटल इज एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। मतलब बिजनेस में एसेट्स अगर 15 लाख का आज है और बाहर वाले का पैसा यहाँ पे लगा हुआ है 10 लाख, तो जाहिर है कि अंदर से कितना पैसा आया? द रिमेनिंग पैसा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यही है कैपिटल। बिजनेस का तो और कोई मिरेक्युलर सोर्स नहीं है। बिजनेस को जो भी मिलेगा मालिक से मिलेगा या बाहर से पैसा मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? इज इट गेटिंग क्लियर? ओके, सो आई सेड टू थिंग्स। नंबर वन जो लिखाया, नंबर टू अभी लिखा है। कैपिटल इज द सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर और एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, आई एम गोइंग अहेड। दैट इज कैपिटल फॉर यू। बुक देखने का दरकार भी नहीं है, बट एक बार पढ़ लो तो तसल्ली होगा। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, सर यही तो लिखा है आप, हाँ मेरा भाषा में लिखाया सेम चीज, इज नोन एज कैपिटल। इट मे बी ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ओनर फॉर द बिजनेस। अच्छा, मैं कैश ना ले आके फर्नीचर लेके आया, तो मैं जो भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस करूंगा कोई भी फॉर्म में, वो सारा क्या है? मैं मालिक जो चीज इन्वेस्ट कर रहा है उसको कैपिटल बोल रहे हैं। वो कैश हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बोला कैश और एसेट्स बाय द ओनर फॉर द बिजनेस ओनर फॉर द बिजनेस एंटिटी। कैपिटल इज इन ऑब्लिगेशन। इज एन ऑब्लिगेशन मतलब ये भी तो लाइबिलिटी ही है एक। मालिक से जो बिजनेस लेके बिजनेस कर रहे, काम में लगा रहे, बिजनेस को जो मालिक से हासिल हुआ है उसको कैपिटल बोल रहे हैं। तो ये बिजनेस का ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द मालिक। अगर मालिक एंड बिजनेस अलग अलग देखो तो कैपिटल इज द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द मालिक टू द बिजनेस, into the business, and you know the business is answerable or obliged to the malik for this amount. Clear hai? It is therefore shown as capital on liability side of the balance sheet. ठीक है? ये liability side of the balance sheet will not make any sense to you because till the time you don't learn what is a balance sheet, how will you understand? तो ये जब बैलेंस शीट पढ़ाया जाएगा तब सीखोगे, अभी इसको लेके सोचना भी नहीं है। 11 में ही सीखना है, एकदम लेटर चैप्टर। ओके, तो दिस इज द फंडा ऑफ कैपिटल। ओके, योर व्हाट? someone has asked that shaky कुछ लग रहा है, तो shaky क्या? your what? you have missed the term voice। मेरा वॉइस क्या फ्लक्चुएट कर रहा है सबको? एक बार कोई बताना। अगर सबको फ्लक्चुएट कर रहा है तो आई विल चेंज। आई हैव गुड स्पीकर टुडे, बट आई गेस मेरा वो माइक भी अच्छा ही है अभी जो यूज कर रहा हूं। क्लियर है ना? सब लिख रहे क्लियर है, तो क्लियर ही है, मैं यही मान के चल रहा हूं। तो आपका ही एंड में प्रॉब्लम होगा पुअर कनेक्शन के लिए, करेक्ट? ओके, फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई विल अपग्रेड द कनेक्शन फर्दर। डोंट वरी पीपल। ओके सर, कैपिटल तो समझ में आ गया, बताइए आप नेक्स्ट क्या है? एकदम समझाऊंगा, डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है? सेल्स। ये सेल्स मेरे को ज्यादा समझाना नहीं है, ये तुम लोग को पता है क्या है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। मैं जितना भी कस्टमर लोग को सर्विस दूंगा या गुड्स बेचूंगा, उससे जो कमाई होगा वो कमाई को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स। वो कमाई को अपने बोलते हैं सेल्स। तो सेल्स इज द टोटल कमाई फ्रॉम
rendering services or selling goods to customers on cash or credit. सेल्स दो तरह का हो सकता है, कैश में सेल किया तो नगद पैसा लिया, और क्रेडिट में सेल किया तो फिर उधार में सेल किया, वो भी तो सेल ही है। क्लियर है? ओके सर, सेल्स खुद से हो गया था बट फिर भी मैं समझा दिया जो है। रेवेन्यू, अभी देखो सेल्स तो एक एग्जांपल है रेवेन्यू का। रेवेन्यू इज अ ब्रॉडर टर्म, रेवेन्यू इज अ ब्रॉडर टर्म, सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू। कुछ लोगों का रेवेन्यू सेल्स नहीं भी हो सकता है। ऑल सेल्स आर रेवेन्यू बट ऑल रेवेन्यू आर नॉट सेल्स, दिमाग में रखो। सर जैसे एक क्लब है, क्लब, सोशल क्लब्स, बहुत लोग मेंबर होते हैं ना, टॉली क्लब, ये क्लब, वो क्लब, ये सब क्लब्स में मेंबर लोग फीस देके भर्ती होता है, एंट्रेंस फीस। तो क्लब्स का कमाई क्या है? एनुअल मेंबरशिप फीस एंड एंट्रेंस फीस। क्लब्स का मेंबरशिप इज एनुअल मेंबरशिप फीस एंड एंट्रेंस फीस। एंड क्लब का क्लब का रेवेन्यू इज नॉट सेल्स, they can sell also some goods, food items, but usually their chief revenue or main source of revenue is what? The fees. तो इसलिए all revenues are not sales but all sales are revenue. Revenue is a broader term. revenue हो गया कमाई, बेच के अगर कमाई हुआ तो वो सेल्स है, और अगर अदर चीज से कमाई हुआ तो फिर वो रेवेन्यू है। तो लैंग्वेज, these are amounts of the business, sales जैसा ही है, इसलिए earned by selling its product or services to customer called sales revenue. other items of revenue भी है, common to many business like commission, interest, dividend, royalty, fees भी आ जाएगा। revenue is also called income. तो income का ही और एक नाम है revenue। क्लियर है? ओके सर। सर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के बारे में अगर होमवर्क में नहीं पढ़े तो पढ़ लो थोड़ा क्लास में। एक्सपेंस क्या है? खर्चा, बंगाली में खर्चा, हिंदी में खर्चा, और इंग्लिश में एक्सपेंस, एक ही चीज है सर। एक ये जो कमाई कर रहे, रेवेन्यू अर्न कर रहे, रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो खर्चा कर रहे, वो खर्चा को अपने एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है ना? जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय कॉस्ट ऑफ एन एसेट कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज्ड ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग पीरियड। यूजुअली आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस यानी कि एग्जांपल्स दे दिया, क्या क्या है? डेप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस, ये सारा खर्चा है। फिर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब बड़ा, एक्सपेंस मतलब छोटा, ऐसे भी सोच सकते हो। एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात हो रहा है जनरली। ठीक है? मतलब मैं एक एसेट खरीदूं तो वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो मेरा एक्सपेंडिचर है, उस हिसाब से बोला जा रहा है। एक्सपेंडिचर का जो खर्चे का बेनिफिट है वो एक साल में नहीं आएगा, वो बहुत सारा साल में आएगा। अच्छा बोलो, मैं गाड़ी खरीदा, क्या एक साल में पूरा मजा मिल जाएगा, या जितना गाड़ी का लाइफ है उतना साल मजा मिलेगा? उतना साल मजा मिलेगा। तो गाड़ी का खर्चा इज एन एक्सपेंडिचर। मैं कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर क्या एक साल में मैं यूज करके फेंक दूंगा? नहीं, सालों चलेगा। तो जो चीज, जो एक्सपेंडिचर सालों चलता है उसको अपने बोलते हैं एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंस हो गया जो शॉर्ट टर्म, मैं परचेस करके गुड्स बेच दिया, तो वो परचेस क्या है? एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस? एक्सपेंस। नाउ यू गॉट इट, नाउ यू गॉट इट। तो एक्सपेंडिचर से बेनिफिट जो है वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में आएगा। एक्सपेंस से जो बेनिफिट है वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में आ जाएगा। क्लियर है? कितना पर्सपेक्टिव मिल रहा है? सुनते रहो, तब तो ज्ञान मिलेगा, तब तो सीखोगे, और बहुत कुछ सीखेंगे, डोंट वरी। ओके अच्छा, प्रॉफिट ना देख के बोलो प्रॉफिट और गेन और लॉस। क्या फंडा है प्रॉफिट गेन और लॉस का? ना देख के, इसलिए हटा दिया। प्रॉफिट और गेन और लॉस का फंडा कुछ ऐसा है, इनकम या रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, नॉट एक्सपेंडिचर, इज प्रॉफिट or loss, depending on if revenue is more and expense is less.
10 lakhs, expense 8 lakhs. बोलो प्रॉफिट हुआ या गेन? प्रॉफिट 10 माइनस 8 लाख 2 लाख. सेम चीज अगर उल्टा कर देते, केस 1 ये है, केस 2 अगर मैं उल्टा कर देता हूं, केस 2 में कर देता हूं ये 8 लाख और ये 10 लाख, तब जाके मेरे को बताना, तब जाके अपने जो जस्ट मोमेंट, तब जाके जो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा. प्रॉफिट विल बिकम लॉस. लॉस को रेड में लिखता हूं तो लॉस दिखाई देगा. ठीक है, और ये लॉस कितना है? -2. -2 ये लॉस है, -2. लॉस मतलब माइनस. ठीक है, तो यही है नेगेटिव प्रॉफिट लॉस. ठीक है, तो यही है फंडा ऑफ प्रॉफिट और लॉस. क्लियर है? ओके सर. सर बताइए नेक्स्ट क्या था? डिस्काउंट. अच्छा, डिस्काउंट क्या होता है मैं बताऊंगा. डिस्काउंट वाउचर गुड्स ड्रॉइंग्स परचेज स्टॉक. और भी है सर? हाँ, डेटर्स क्रेडिटर्स. और है नहीं तो मैं लिख के रख रहा हूं. सारा टर्म समझा के चैप्टर 2 शुरू करेंगे. आज का क्लास शुरू हो गया, ये टर्म्स बाकी था. ओके, तो सर लिख लीजिए एक साथ, आप समझा दीजिए, फिर बुक से हम लोग देख लेंगे या देख लिए. डिस्काउंट वाउचर गुड्स ड्रॉइंग्स एंड डेटर्स क्रेडिटर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब अगर किसी को आ जाए तो आगे जाके जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना सीखोगे, जिसको अपने बोलते हैं जर्नल, आगे जाके सीखेंगे. मैं अभी एक स्नैपशॉट बोल दिया, तो वो सब में इतना मजा आएगा और इतना सीख पाओगे, मतलब खत्म नहीं है, अंत नहीं है. तो ये सारा टर्म्स को अच्छे से जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मैं सारा चीज सिखाऊंगा. ठीक है, ओके, ध्यान देना. डिस्काउंट वाउचर गुड्स ड्रॉइंग्स डेटर्स क्रेडिटर्स. ठीक है, ध्यान से सुनना. फर्स्ट टर्म इज डिस्काउंट. व्हाट इज डिस्काउंट सर? डिस्काउंट बोलने से पहले मैं डेटर एंड क्रेडिटर समझाऊंगा. डेटर एंड क्रेडिटर सर, और स्टॉक भी था. हाँ, स्टॉक भी था. परचेज भी था. हाँ, परचेज भी था. परचेज नहीं, परचेज तो ऊपर हो गया था. एक बार देख लेते हो क्या था. वाउचर गुड्स, हाँ, परचेजेस स्टॉक. ठीक है, परचेज स्टॉक. ओके, आई विल गो इन माई ओन ऑर्डर. डो नॉट इंटरप्ट एंड कीप ऑन लिसनिंग. मैं सारा आइटम्स को लिख लिया जो जो बुक में है, ताकि कोई मिस ना हो. और सारा चीज को मैं समझाऊंगा. मेरा खुद का ऑर्डर में समझा रहा हूं, उसमें तुम्हारा कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा. और तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग और जो अंडरस्टैंडिंग है बेस्ट बैठेगा. मैं जिस ऑर्डर में बोल रहा हूँ उसी ऑर्डर में अगर प्रेजेंट करूँ तो. ठीक है, ओके. अब ध्यान देना. पहला चीज जो मैं समझाऊंगा, याद करो मैं सेल्स पढ़ाया था, सेल्स. तो वैसे ही सेल्स का ऑपोजिट है परचेज. तो पहला चीज मैं जो बोल रहा हूं वो है परचेज. यूजुअली बुक में जो भी लिखा है, पहले ध्यान से सुनना. मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने दो तरह का बिजनेस कर सकते हैं. दो तरह का बिजनेस इन टर्म्स ऑफ गुड्स होता है. गुड्स या फिर अपने मैन्युफैक्चर करते हैं,
या फिर गुड्स खरीद के बेचते हैं जिसको बोलता है ट्रेडिंग। सो इन रिलेशन टू गुड्स, इन रिलेशन टू बिजनेस डीलिंग इन गुड्स लिख सकते हो, इन रिलेशन टू बिजनेस डीलिंग इन गुड्स, in relation to businesses dealing in goods, goods लेके जो businesses होता है, there are two types of biz, दो तरह का बिजनेस हो सकता है गुड्स लेके। नंबर वन, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस where you make goods and sell. Number two, trading business where you buy and sell goods. सर इतना आसान? हाँ, एक जनरल आइडिया दिया। मैं क्या बोला, गुड्स लेके जो बिजनेसेस डील करते हैं वो बिजनेसेस दो तरह से डिजाइन किया जा सकता है। एक, तुम बना के बेच रहे हो यानी कि जिसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरर, और दूसरा ट्रेडिंग बिजनेस जिसमें बोला जाता है ट्रेडर, होलसेलर या रिटेलर। ठीक है ना? तो ट्रेडिंग बिजनेस पे अपने खरीद के बेचते हैं और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अपने बना के बेचते हैं। दोनों तरह का बिजनेस ये गुड्स लेके हो सकता है। ओके सर, फाइन। अब बताइए और सुनिए, ये जो दो तरह का गुड्स लेके बिजनेस हो सकता है, अब ध्यान से समझना, मैं जो बोलने का कोशिश करूंगा। गुड्स को बेचने को अपने सेल्स बोलते हैं, सेल्स पढ़ लिए थे। तो गुड्स को खरीदने को क्या बोलते हैं? ये वाला चीज, यही है परचेस। सो whenever we buy goods in order to resell, लिख के रखो, whenever we buy goods in order to resell, they are known as purchases. क्लियर है? इज इट क्लियर? ये सब डेफिनेशन लिख के रखो तो कॉन्सेप्ट अलग लेवल में हो जाएगा बुक के ऊपर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। आई एम नोइंगली डूइंग दैट सो दैट यू स्टैंड टू बेनिफिट। आपको जाके बेनिफिट मिले, आपको जाके एडवांटेज मिले, तभी जाके अपने इतने मेहनत कर रहे। क्लियर है? ओके, तो लिख के रखो ये सारा चीज। तो मैं क्या बोला? मैं बोला कि आज अगर कोई गुड्स मैं खरीद रहा हूं ट्रेडिंग बिजनेस में, वो गुड्स रीसेल करूंगा बोल के, तो वैसा गुड्स को खरीदने से अपने उसी को परचेज बोलते हैं। अब और एक चीज बोलूंगा। अच्छा बोलो, एक चीज मैं खरीद रहा हूं बाजार से, परचेज तो खरीदने को बोला जाता है, वो चीज मैं रीसेल नहीं करूंगा, कंज्यूम करूंगा। क्या है सर चीज? लेट्स से कंप्यूटर। कंप्यूटर मैं खरीदने गया बट कंप्यूटर को मैं बेचूंगा नहीं। मैं कंप्यूटर खरीदने गया बट कंप्यूटर को मैं बेचने के लिए नहीं खरीद रहा हूं, मैं सेल करने के लिए खरीद रहा हूं। सॉरी, मैं कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा हूं, मतलब मैं इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहा हूं। ठीक है? तो मैं कंप्यूटर खरीदा, और कंप्यूटर मैं क्या करने के लिए खरीदा? बेचने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए? इस्तेमाल करने के लिए। सुनते रहो बेटा, अभी पूछो मत बीच में। तो मैं अगर इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर खरीद रहा हूं तो इसको परचेज बोलेंगे या ये एसेट है? परचेज ऑफ गुड्स है या परचेज ऑफ एसेट है? इट इज अ परचेज ऑफ एन एसेट। सो बेस्ड ऑन हाउ एन आइटम एक्वायर्ड विल बी यूज्ड, एक आइटम जिसको मैं एक्वायर किया उसको कैसे पुट टू यूज करूंगा, कैसे उसका इस्तेमाल करूंगा, उससे
हम लोग जज करते हैं वो आइटम बिजनेस के लिए गुड्स है या एसेट है? ओके, वंस अगेन, मैं बाजार गया, कंप्यूटर खरीदा। मैं बाजार जाके क्या खरीदा? कंप्यूटर। मैं बाजार जाके जो कंप्यूटर खरीदा, ये कंप्यूटर किस लिए खरीदा? कंप्यूटर खरीदने का पर्पस इज नॉट टू रीसेल इट बट टू यूज इट कैप्टिवली इन द बिजनेस। उसको बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए पूरा पूरी मैं कंप्यूटर खरीदा। तो मेरा परचेस करने का मकसद, द पर्पस ऑफ बाइंग is determining how, is based on how I will use that, whether I will use it and consume it within the business or I will resell it. Based on that, an item is a goods or not a goods. Goods are usually items जो हम लोग खरीदते हैं रीसेल करने के लिए, एंड जो आइटम्स मैं खरीदता हूं इस्तेमाल करने के लिए कैप्टिवली बिजनेस में, वो आइटम्स को एसेट्स बोलते हैं। अब समझ में आया एसेट का और एक पर्सपेक्टिव और एसेट एंड गुड्स का फर्क? ठीक है, ऑल गुड्स आर एसेट। ऑल गुड्स जब हाथ में है तो स्टॉक बन के वो एसेट है, बट ऑल एसेट्स आर नॉट गुड्स। ठीक है, तो सर और क्लियरली एकदम बताइए 1 2 3 करके। मैं पूरा 5 मिनट डिस्कशन करूंगा, बीच में कोई कुछ मत पूछना, बिकॉज मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूं। उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर फिर क्लियर नहीं होता है तो तब पूछना, डोंट वरी। तो मैं स्टेप 1 क्या बोला? परचेस किसको कहा जाता है? मैं जब बाजार से गुड्स को खरीदता हूं उसको परचेस बोलता हूं। एसेट को खरीदने को भी परचेस ऑफ एन एसेट बोल सकते हो, बट एसेट एंड गुड्स में डिस्टिंक्शन समझाया। तो गुड्स आर आइटम्स बॉट एक्सक्लूसिवली कॉपी करते रहना, एक्सक्लूसिवली फॉर रीसेल पर्पस। तो रीसेल के लिए जो भी चीज अपने खरीदते हैं, जो भी चीज, घड़ी, फर्नीचर, कंप्यूटर, रीसेल के लिए अगर खरीद रहा हूं कार, तो वो क्या है? एसेट है या गुड्स है? गुड्स है। गुड्स आर आइटम्स बॉट एक्सक्लूसिवली फॉर रीसेलिंग पर्पस। क्लियर है? Is it clear? And what is the difference between goods and asset? Goods versus asset में मैं ये बोला, the purpose, the main defining difference is the purpose of use. Purpose of use. Goods are bought for reselling purpose and assets are bought for captive use. कैप्टिव यूज मतलब बिजनेस में इस्तेमाल के लिए। क्लियर है? तो ये है फंडा, ये है फंडा ऑफ गुड्स, एसेट एंड परचेज। गुड्स जब खरीदते हैं परचेज, गुड्स जब बेचते हैं सेल। गुड्स व्हेन बॉट इट इज परचेज, गुड्स व्हेन सोल्ड इट इज सेल। अच्छा बोलो, अब ध्यान देना, मैं गुड्स सेल्स इज goods when sold, purchase is goods when purchased, bought। ठीक है, इतना आसान कर दिया। अब ध्यान देना, मैं 100 आइटम्स खरीद के 80 आइटम्स बेचा। मैं 100 आइटम्स खरीद के 80 आइटम्स बेच दिया, 20 आइटम्स कहां गया? सर वापस बताइए, अभी बोलेगा। मैं 100 आइटम्स खरीदा, 80 बेच दिया, 20 कहां गया? बताओ बताओ, इतना तो बता सकते हो। स्टॉक। अंकित बोला स्टॉक, वेरी गुड। इसी को स्टॉक बोला जाता है, इसी को स्टॉक बोला जाता है। मैं खरीदा 100 तो 80 बेचा, मतलब 20 अभी भी पड़ा हुआ है, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, अदरवाइज तो मेंशन नहीं किया। ठीक है, मतलब 20 पड़ा हुआ है बिजनेस में, तो द गुड्स लेफ्ट इन बिजनेस
द गुड्स लेफ्ट इन हैंड आफ्टर सेलिंग द गुड्स, ठीक है, परचेस करके रीसेल करके जो गुड्स हाथ में पड़ा रहता है उसी को अपने बोलते हैं स्टॉक इन हैंड और स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक इन द गुड्स रिमेनिंग with the business, remaining with the business after they are sold. क्लियर है? क्लियर है? देखो कितना क्लियर हुआ। और ये बहुत लोग को अभी भी क्लियर नहीं है, वो लोग कर रहे हैं जर्नल वगैरह, जर्नल वगैरह करना लग गया स्कूल में, डिफरेंट कोचिंग में। क्यों? क्योंकि they don't learn the way we are learning. That's the difference. Okay, the goods, purchase, stock, तीनों चीज हो गया। हाँ है ना? हाँ है ना? अभी जल्दी से इसको कॉपी करो। किसका किसका कॉपी बाकी है पहले हाथ उठाओ तो। कोई इशू नहीं है, बाकी रह सकता है। हाँ ठीक है, करो। सब लोग कॉपी करके हाथ उठा दो, कॉपी करके हाथ उठाओ, डोंट वरी। I am showing the definition, don't worry. This is what we have. मैं छोटा कर दे रहा हूं, एक सेकेंड। Now you can see. Copy and show your hands. I will start. Okay. I believe सबका कॉपी हो गया. No more time. So I also gave you some time to think on what we have learned. We have learned three things together. One is purchase, the other one is goods, and the third one is stock. तीनों चीज सीख गए। तो गुड्स इन बिजनेस का मतलब होता है मेरा बिजनेस में फर्नीचर है, बट ये फर्नीचर में मैं बैठता हूं, मैं मालिक हूं बिजनेस का। तो ये फर्नीचर मेरा एसेट है या गुड्स है? एसेट है। समझ में आया? बट मेरा बिजनेस भी फर्नीचर डीलर का है। आई एम अ फर्नीचर डीलर ओनली। तो जो बिजनेस
जो मेरा बिजनेस का स्टॉक है या जो गुड्स मैं खरीदा बेचने के लिए, वो मेरा गुड्स है। बात समझे? और गुड्स जो खरीदा वो परचेज है, और खरीद के बेच दिया जो पड़ा हुआ है वो स्टॉक है। तो ये टर्म्स दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, ठीक है? मैं एक चीज पूछ रहा हूं, तुम लोग आंसर दो कमेंट में। कमेंट में मेरे को आंसर देना, चैट में। अब ध्यान से सुनना, चीज कुछ ऐसा है कि आई एम अ डीलर ऑफ कंप्यूटर्स। आई एम अ डीलर ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर डीलर होते हैं। I have bought a PC. I have bought a PC, and this PC I am using in my business. The purpose of buying the PC is not to resell but to use in business. What is this PC to me? A goods or an asset? Very good. Very good. All of you have given me the right answer. I'm so happy. I'm so happy. Great learning, guys. Okay. Now यही है गुड्स परचेस स्टॉक का फंडा। ओके सर हो गया। अब ध्यान से सुनना, ड्रॉइंग्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स क्रेडिटर्स और डिस्काउंट और वाउचर एक साथ होगा। उसके पहले मैं ड्रॉइंग्स बता दूं। कैपिटल का उल्टा है ड्रॉइंग्स। हिंदी में लिख सकते हो। बिजनेस में मालिक जो देके बिजनेस शुरू करता है उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। और मालिक बिजनेस से जो ले लेता है, उठा लेता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, एसेट, कोई भी चीज, वो है ड्रॉइंग्स। तो बिजनेस को मालिक जो दिया, दैट इज कैपिटल। मालिक्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द बिजनेस इज कैपिटल। Malik, whatever he takes away from the business is drawings. So write down a line. Drawings के बारे में एक लाइन लिख लो। Write down a line on drawings. लिखो, whatever the proprietor takes away from business, whatever the proprietor takes away from business is known as drawings. Is known as what? Drawings. Is known as drawings. Whatever the business proprietor takes away from the business or takes out from the business is known as drawings. Clear है? It's just the logical opposite of capital. Okay? अब 4 चीज बाकी है, उसके साथ साथ मैं क्वेरी शुरू करूंगा। हम लोग एक्सटेंसिवली हर एक चीज सीखे, और आज का क्लास का कॉन्सेप्ट्स का कोई जवाब नहीं, बिकॉज ये सब एक्सटेंसिवली यूज होने वाला है फ्यूचर चैप्टर्स में, जो हम लोग सीख रहे हैं आज। ठीक है? और ये कॉन्सेप्ट जिसका बैठा नहीं हुआ है वो चैप्टर में स्ट्रगल करेगा। मैं जो बोलते रहता हूँ, बेस बिल्डिंग है। फर्स्ट फ्लोर अगर स्ट्रांग नहीं है, सेकंड फ्लोर कैसे स्ट्रांग होगा? और सेकंड फ्लोर अगर स्ट्रांग नहीं है, थर्ड फ्लोर कैसे स्ट्रांग होगा? ठीक है? इट्स लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, नहीं, someone is asking, sir, is drawings a liability? Very faulty concept, don't go after that. Very faulty concept, don't go after that. ठीक है? Drawings can never be a liability. ठीक है? Okay. Can we tell whatever the proprietor takes away from the business for personal use is known as drawings? Of course, वही तो बोला। बिजनेस यूज के लिए प्रोप्राइटर क्यों लेगा अपना घर में? पर्सनल यूज के लिए लेगा। ठीक है? ड्राइंग एसेट भी नहीं है, लाइबिलिटी भी नहीं है। डोंट कंफ्यूज, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। डोंट से ऑल दिस थिंग्स, जो नहीं पता मत बोलो। और बोल सकते हो, आई डोंट कंट्रोल एनीवन्स थॉट, बट आई ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग थिंग्स व्हिच आई डोंट नो। सर आपको पता नहीं, एज अ स्टूडेंट यू डोंट नो, सो यू शैल नॉट रिफ्रेन। Okay, so I am not answering to that, Ankit. Ankit is asking whether drawings is an asset or a liability. No, that's a child's play, answering like that.
आई विल आंसर एट अ वेरी हाई लेवल. जब जिस दिन हम लोग सीखेंगे उस दिन तुम वो हाई लेवल में आंसर दे पाओगे. ठीक है. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिस्कशन येट. आई हैव जस्ट ओनली इंट्रोड्यूस्ड टू यू ड्राइंग्स क्या है. ठीक है. एसेट लायबिलिटी के बारे में मैं नहीं बोला क्योंकि अपने गोल्डन रूल और जर्नल लेजर अभी भी सीखे नहीं. वो सीखने के बाद जब ट्रायल बैलेंस में पहुंचेंगे तब एसेट लायबिलिटी लेके डिस्कशन होगा. ठीक है. ओके. नाउ सर अभी बताइए डेटर्स और क्रेडिटर्स कौन है और वाउचर एंड डिस्काउंट क्या है. पहले वाउचर बता दूं फिर डेटर क्रेडिटर एंड डिस्काउंट तीनों बताऊंगा. सुनो, अकाउंट्स में क्या होता है. रिकॉर्डिंग से रिपोर्टिंग एवरीथिंग. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटिंग? व्हाट इज अकाउंटिंग? recording, summarizing, recording, classifying, summarizing, RCS, and then analyzing, communicating and reporting, ACR, ना देख के, of transactions. So recording जो होता है, कोई बैठ के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, उसी बंदे को अपने बुक कीपर बोलते हैं रिकॉर्ड मेकिंग पेज. तो ये रिकॉर्ड क्या अंधेरे में खुद से मन से करेगा या कोई डॉक्यूमेंट के खिलाफ करेगा? डॉक्यूमेंट के खिलाफ करेगा. तो जो डॉक्यूमेंट देख के, उसको डॉक्यूमेंट देगा कोई ऑफिस में आके, बोलेगा ये लो डॉक्यूमेंट्स, इसका रिकॉर्ड करो, इसका अकाउंटिंग करो या रिकॉर्डिंग करो. तो जो डॉक्यूमेंट्स देख के एक अकाउंटेंट रिकॉर्डिंग करता है ट्रांजैक्शंस को, वो डॉक्यूमेंट का नाम है वाउचर, और वो एंट्री को बोला जाता है वाउचर एंट्री. वाउचर देख के करता है इसलिए वाउचर एंट्री. और वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? पीस ऑफ पेपर का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट का मतलब पीस ऑफ पेपर, ऑफिशियल पीस ऑफ पेपर, दैट इज नोन एज वाउचर. क्लियर है? जो भी एंट्री सिस्टम में गिरता है सब वाउचर के खिलाफ ही गिरता है. वाउचर मींस एन ऑथराइजेशन कि तुम ये रिकॉर्ड कर सकते हो. एक नोट ऑफ ऑथराइजेशन वेयर the management or the organization is authorizing you that you can write this entry in the books of accounts. Clear hai? So voucher is a document which authorizes the accountant to record a entry. Clear? So voucher is a document authorizing the recording. Okay? So लिखो voucher. हर चीज को एकदम सही से जान लो. ठीक है? देखो वाउचर इज अ पेपर, सॉरी डॉक्यूमेंट. पेपर डॉक्यूमेंट ही होता है. वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट authorizing the entry, the recording entry of a transaction. Authorizing the recording entry of a transaction. Voucher is a document authorizing the recording entry of a transaction. Clear है? वाउचर हो गया सर. अभी डेटर क्रेडिटर एंड डिस्काउंट का बारी है, आखिरी, और पूरा खत्म हो जाएगा. क्लास भी, चैप्टर भी, फिर डाउट्स में जाएंगे. ओके. नाउ ध्यान से सुनना. सारा चीज हो गया, खाली 3 चीज बाकी है, डेटर क्रेडिटर डिस्काउंट. अच्छा, आज सेल्स पढ़ाते वक्त मैं बोला सेल यानी कि तुम बेच सकते हो कैश में या क्रेडिट में. कैश में बेचना मतलब मैं आज तुमको गुड्स दे रहा हूं, आज ही तुम मेरे को पैसा दे रहे हो, तो ये सेल क्या कैश सेल है या क्रेडिट सेल है? कैश सेल है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है. देयर इज नो डाउट, इट इज अ कैश सेल. ओके सर, कैश सेल. सो कैश सेल मीन्स when you are selling the goods against cash, नगद, जिसको हिंदी में बंगाली में क्या बोलते हैं अपने? नगद. ठीक है ना? तो नगद में बेचना इज कैश सेल. ओके सर, ये तो समझ में आ गया. अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं दूसरा चीज बोल रहा हूं.
मैं बोल रहा हूं कि अगर कैश में नहीं बेचे वो भी हो सकता है, हाँ कैश में नहीं बेचे वो भी हो सकता है। अगर मैं क्रेडिट में बेचा, इफ आई सेल ऑन क्रेडिट, then is that possible? Yes, very much. If you don't like to sell on cash, you can sell on credit. So both cash and credit sale हो सकता है। वैसे खरीदना यानी कि परचेज भी कैश एंड क्रेडिट परचेज हो सकता है। So both purchase and sale could be either on cash or on credit. Both purchase and sale could be either on cash or on credit. हाँ है ना? मैं अगर पैसे के खिलाफ परचेज किया, कैसा पैसा दिया, गुड्स लिया, तो दैट इज कैश परचेज। मैं गुड्स खरीद लिया, बोला पैसा 2 महीना बाद दूंगा, दैट इज क्रेडिट परचेज। मैं आज कैश दिया, कैश मिला मेरे को, मैं गुड्स बेच दिया, तो ये कैश सेल है। मैं गुड्स बेच दिया, बोला ठीक है 2 महीने में पैसा चुका देना, ये क्रेडिट सेल है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? ओके, नाउ ये जो क्रेडिट सेल कर रहा हूं, क्रेडिट सेल कर रहा हूं मतलब मेरे को फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा या मिलेगा? मिलेगा ना। सेल मतलब तुम बेच रहे हो, सेल मतलब तुम बेच रहे हो किसको? कस्टमर को। और कस्टमर से क्रेडिट सेल में क्या पैसा ले रहे हो या पैसा नहीं ले रहे हो? पैसा नहीं ले रहे हो। When you are selling goods to customer, if you are selling it on credit, when you are selling goods to customer and if you are selling it on credit, then you will get the money back from the customer at a future date. क्रेडिट सेल जब भी हम लोग करते हैं, the customer becomes your debtor. The customer becomes your what? Debtor. So debtor is no one but the customer to whom you have sold on credit. Sold on credit. And from whom you will get money. From whom you will get money. जिससे आपको पैसा मिलेगा। इस व्यक्ति को या शख्स को हम लोग क्या कहते हैं? डेटर। इस व्यक्ति को या शख्स को अपने क्या बोलते हैं? डेटर। ओके। एंड क्रेडिटर ठीक उल्टा है, क्रेडिटर ठीक उल्टा है, ऑपोजिट है। क्रेडिटर इज, अच्छा बोलो, परचेज भी क्रेडिट में करते हैं। परचेज किससे करते हैं? कस्टमर से या सप्लायर से? परचेज मैं किससे करता हूं? कस्टमर से या सप्लायर से? खरीदता हूं किससे? जो सप्लाई करता है, जिसका नाम है सप्लायर। So I purchase from supplier and I sell to my customer. So when I purchase from my supplier, I can also purchase on credit. And if I purchase on credit from my supplier, I will have to pay back the money to my supplier. And the supplier is known as creditor. Supplier is known as creditor. Supplier from whom you have bought goods on credit. Bought goods from credit, to whom you will give money, to whom you will pay money in the future. सर ये है डेटर एंड क्रेडिटर। हाँ, वंस अगेन अभी थोड़ा ध्यान देना, एक लास्ट चीज मेरे को बोलना है, फिर खत्म करेंगे, डिस्काउंट लेके कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। 7 बजने वाला है, क्वेरी का टाइम देना है इसलिए। अब ध्यान से सुनना, डेटर कौन है? एक कस्टमर है
जो मेरे से गुड्स लेके गया, उधार में या कैश में? उधार में, तो फ्यूचर में मेरे को पैसा मिलेगा डेटर से। डेटर इज अ कस्टमर जिससे फ्यूचर में मिलेगा। अच्छा, मैं जैसे ही बोल रहा हूं फ्यूचर में मिलेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये व्यक्ति या शख्स, ये व्यक्ति या शख्स मेरा एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में मेरे को मिलेगा, सो डेटर इज एन एसेट। सर करंट एसेट है या नॉन करंट? करंट, जल्दी से जल्दी मिलेगा, एक साल के बाद तो नहीं मिलेगा, यूजुअली करंट एसेट। सो इट्स अ एसेट, एंड विच काइंड ऑफ एसेट? करंट एसेट। Whereas क्रेडिटर, ध्यान देना, क्रेडिटर का ध्यान देना, क्रेडिटर का ध्यान देना। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर एक ऐसा शख्स है जो तुमको उधार में बेचा है, जो तुमको उधार में बेचा है और जिसको तुमको फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, तो ही इज एन ऑब्लिगेशन एंड क्रेडिटर इज अ सिमिलरली करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये है फंडा ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। अभी का जो ज्ञान है इसका तो बहुत खुलासा में बात होगा फ्यूचर चैप्टर्स में, ठीक है। आज का क्लास का लर्निंग पोर्शन ये पे खत्म होगा, डिस्काउंट से कंटिन्यू होगा नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास क्या होगा मैं लिख के रख रहा हूं। नेक्स्ट क्लास शुरू होगा रिवीजन, नहीं होमवर्क, होमवर्क डिस्कशन, होमवर्क दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास कब है सर? मंडे। मंडे कौन सा टाइम में? वही टाइम और चेंज नहीं होगा, 6:30 एंड on Mondays and Wednesdays. 6:30 is on Mondays and Wednesdays. So next class is on Monday 6:30 as usual. Homework discussion will be done. Homework discussion will be done. Then revision will be done. Sorry, revision पहले होगा फिर homework discussion होगा. Then chapter discount will be done. Discount will be done. Then lastly, discount के बाद lastly क्या होगा सर? Lastly we will do chapter 2. डिस्काउंट करने में 2 मिनट लगेगा, चैप्टर 2 ही मेजर होगा, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट क्लास का एजेंडा। एंड विच डे इज दैट? नेक्स्ट क्लास विल बी 29 जून। ओके सर, अभी नेक्स्ट क्लास तो यहां से कंटिन्यू होगा, वो तो ठीक है। अभी डाउट्स नहीं कराएंगे, एकदम कराऊंगा डाउट्स, और होमवर्क देंगे। हाँ, पहले होमवर्क फिर डाउट्स। होमवर्क देख लो क्या है। पूरा चैप्टर 1 टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा मेरे को व्हाट्सएप में पूछोगे, अभी तो डाउट्स में बोल ही दूंगा, ठीक है। पूरा चैप्टर टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए, समरी के साथ। एंड खाली डिस्काउंट छोड़ सकते हो, डिस्काउंट पढ़ाया नहीं, ये करना पड़ेगा। सर व्हाट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 हैज टू बी डन। सर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 करेंगे? हाँ। समरी करोगे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 करोगे, फिर क्वेश्चंस करोगे। ये क्वेश्चंस, हाँ, these 2 questions, sorry, these 10 questions for practice, ठीक है। सो यू हैव गॉट अ हेवी होमवर्क, मंडे तक बहुत टाइम है। ये भी करोगे? हाँ, ये तो आंसर्स है सर, क्लियर है। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहा, पूरा चैप्टर, एंड देन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 एंड ऑन द एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी हैव moved to the last portion of our class, which is doubt clearance. I will check, of course I will check one by one. I will go for the doubts, so please एक बार बोलते रहना। डाउट्स, प्लीज कीप ऑन आस्किंग योर डाउट्स। 3 डाउट मिला अभी तक। एक जन पूछ रहा है करंट एसेट करंट लायबिलिटी, और एक बार बोलिए। एक जन पूछ रहा है कि वाउचर समझाइए, 2 ही डाउट आया। एक जन पूछ रहा है कि प्रॉफिट एंड गेन का फर्क क्या है, पूछिए। प्रॉफिट एंड गेन का फर्क मैं पढ़ाया नहीं, डोंट आस्क मी क्वेश्चंस व्हिच आई डिड नॉट एक्सप्लेन यू। प्रॉफिट एंड गेन का मैं बाद में जाके पढ़ाऊंगा, तो तुम्हारा मन में अगर डाउट है सर ये क्या है, तो बाद में सॉल्व होगा, ठीक है। ज्योतिष का
क्रेडिटर, एक जन पूछ रहा है क्रेडिटर, एक जन बोल रहा है कि सर आई हैव जॉइंड नाउ, आई वाज हैविंग अनदर क्लास, प्लीज सेंड मी द रिकॉर्डिंग. यस, we will upload this class on YouTube. I have told because we have changed time. तो change, आज का क्लास थोड़ा चेंज टाइम हुआ तो मैं YouTube में अपलोड कर दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना. ठीक है, सारा डाउट्स कंप्लीट हो गया. मैं खाली 3 डाउट जो वैलिड है, जो अभी समझाने लायक है, उसको एड्रेस करूंगा. करंट एसेट, करंट लायबिलिटी. गौरव सिंह का क्रेडिटर, मतलब आपका क्रेडिटर नहीं, आपका डाउट क्रेडिटर. एंड अभिजीत शाह का वाउचर. एंड ज्योतिष्का का जो डाउट है वो, मैं क्या बोला, ज्योतिष्का आगे जाके होने वाला है. गेन एंड प्रॉफिट का फर्क अभी इस लेवल का नहीं है. ठीक है, ओके सर. शॉर्ट टर्म एसेट एंड गुड डिफरेंस, क्या लिख रहे हो? इंग्लिश नहीं आता है तो बंगाली में लिखो, मजाक कर रहा हूं. शॉर्ट टर्म एसेट एंड गुड डिफरेंस का मतलब क्या है, क्या बोल रहे हो? ओके, नाउ ध्यान से सुनना. करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी से शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनो. मतलब क्या है? मैं बोला था एसेट 2 प्रकार का होता है, करंट एंड नॉन करंट. बेस्ड ऑन what? Based on the period of holding of the asset. If the asset is intended to be held and used for a longer term, then it is a non-current asset, fixed asset जिसको बोलते हैं. And if the asset is held for a shorter term, then such an asset is known as current asset. Okay, current asset मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जो होल्ड कर रहा हूं, और जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं या होल्ड कर रहा हूं, उसको बोल रहा हूं नॉन करंट एसेट. नॉन करंट एंड करंट एसेट. ओके, what about sir the second question, which was creditor? Okay, तो liability sir, and what about liability भी non current current same ही basis में, long term and non long term? Yes, same. So second was voucher. वाउचर क्या है, किसी का क्वेरी था. वाउचर क्या है, किसी का क्वेरी था. वो मैं बोला कि अकाउंटेंट जो भी रिकॉर्ड करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग इज बुक कीपिंग. सो अकाउंटेंट जो भी रिकॉर्ड करेगा, खुद का मन से करेगा या इंस्ट्रक्शन देख के? इंस्ट्रक्शन देख के, ऑथराइजेशन लेने के बाद. हाँ या ना? प्लीज बी रिस्पॉन्सिव, जिसका डाउट था. तो अकाउंटेंट जो भी रिकॉर्ड करेगा, कोई इंस्ट्रक्शन देख के करेगा. वो इंस्ट्रक्शन जो लिखित उसको दिया जाएगा, वो एक वाउचर में दिया जाएगा. वाउचर, एंड दैट वाउचर, दैट इज वाउचर. क्लियर है? लास्टली एक क्वेरी था क्रेडिटर. थैंक यू अभिजीत. लास्टली एक क्वेरी था क्रेडिटर. क्रेडिटर का मतलब क्या है सर? मैं बोला आज कैश में, गौरव सुनना, कैश में हम लोग खरीद सकते हैं या क्रेडिट में खरीद सकते हैं? क्रेडिट में अगर खरीदा, यानी कि उधार में तुम खरीद के ले आए, तो तुमको फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा. हाँ है ना? तो फ्यूचर में तुम पैसा दोगे, तो इस व्यक्ति को अपने क्या बोलेंगे? क्रेडिटर, जिसको फ्यूचर में तुमको देना पड़ेगा. तो ये तुम्हारा ऑब्लिगेशन है, यानी कि लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी है. ठीक है सर. एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट, बाकी लोग दो. तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट कोई दे पाओगे? देखते हैं, कोई भी दो, मैं दिखाना चाहता हूं. नॉन करंट एसेट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? लिख सकते हो कोई भी. someone is asking, Ankit is asking example of non current asset. I can give instantly, but of course I am waiting for others. Can anyone give an example of non current asset? कंप्यूटर. यस, अभिजीत ने बोल दिया कंप्यूटर. ब्रिलियंट. बिल्डिंग, लैंड, प्रॉपर्टी, मोटर कार. मैं बोल रहा हूं, ये लिख नहीं रहा है. मशीन्स, वेरी गुड गौरव. कोई भी चीज, फर्नीचर, जो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तुम इस्तेमाल करोगे, लॉन्ग टर्म. ठीक है, ओके. इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज. वाओ श्रीश. ओके, ज्योतिष को ने बीच में लिखा सर, ज्योतिष का मत बोलिए, ज्योतिष को है ना. ठीक है, ओके. और किसी का कोई डाउट है? ओके, ऑल राइट. ड्रॉइंग्स वंस मोर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? ज्योतिष का
Jyotishko, I am unmuting you. Okay. Jyotishko, tell us the meaning of capital. Then I will tell Jyotishko the meaning of drawings. Go ahead. Yes, Jyotishko, we are listening to you. Yes, sir. Sir, amount invested by the owner of the firm. Very good. Then whatever the proprietor brings to the firm is known as capital. You can interact with me. Don't have to mute. Whatever the, it will give you a feeling of the class. That's why. So Yes. whatever the proprietor brings to the business is known as capital. Yes, And sir. whatever the proprietor takes away from the business is drawings. Just the opposite terms. Okay? Okay, sir. Okay. Great. Great. Thank you, sir. But there are, listen to me. All of you listen to me. There are differences. Drawings आगे जाके मैं और अच्छे तरीके से एक लेयर्ड मैनर में सिखाऊंगा. उतना आसान भी नहीं है मैं जो ड्राइंग्स बोला, इसलिए बीच में कोई बोला था एसेट या लायबिलिटी ना जान के, तो मैं परफेक्शन के साथ सिखा रहा हूं. अभी ये बोला, बाद में जाके मैं और गहरा बोलने वाला हूं जिस दिन क्लास होगा. अभी के लिए इतना काफी है. ठीक है? अभी के लिए जो बोला वो. ठीक है सर. हाँ सर. Okay, great guys. Now tell me, I don't think there's any other doubt. I've solved all doubt. Every day we will solve doubt. Without doubt class का मजा ही नहीं आएगा. ठीक है? Thanks for attending today's class. I will upload today's lecture. You can see it once more on YouTube. If you want to personally interact with me, you can, you know which number to call. I have shared with you the dialing number you can call, or you can WhatsApp, and you know WhatsApp कर सकते हो. WhatsApp नंबर भी दिया हुआ है. एंड नेक्स्ट क्लास का एजेंडा मैं सेट कर दिया 29 जून. मैं एक अनाउंसमेंट करके क्लास को खत्म करूंगा. अनाउंसमेंट ये है, आप लोग का स्कूल्स में क्लासेस चल रहे हैं. आप लोग का फ्रेंड्स है. आप लोग का फ्रेंड्स को आप लोग बोल सकते हो कि अकाउंट्स आप कहाँ करते हो. मैं डायरेक्टली ये नहीं बोला, आज डायरेक्टली बोल रहा हूं. You can tell, and if your friends are interested in joining, you can share the YouTube link of the first two classes. First two classes भी हम लोग का YouTube में है, basic concept, और ये fourth class भी जाएगा. ठीक है? You can share with them the links and ask them to see it, and after that they can attend Monday's class with due permission. Coordinate with Shubham, Mr. Shubham Mishra, and you know I will allow. Okay, but you have to coordinate with Mr. Shubham Mishra and your friends, and then okay. Thanks for attending today's class, guys. Homework karke. We are meeting on Monday 29th. See you.